کو بتائیں کہ لاہور شہر میں بچوں کے اغوا کو روکنے کے لیے لاہور پولیس متحرک ہے۔ آئے روز بچوں کے اغوا کے واقعات کے پیش نظر والدین میں خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ چند روز قبل نشتر کالونی کے علاقے سے نومولود بچے کا اغوا ہوا تھا، جسے بازیاب کروا کر والدین کے حوالے کیا گیا، اور ایس پی ماڈل ٹاؤن اخلاق اللہ تارڑ والدین سے ملنے کے لیے ان کے گھر بھی گئے تھے۔ اسی طرح جناح اسپتال سے 2.5 سالہ بچی اغوا کرنے کی کوشش پر اغوا کار کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ گورڈن ٹاؤن پیٹرولنگ نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے 2.5 سالہ بچی بحفاظت بازیاب کرا لی۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن کے مطابق 2.5 سالہ انشا والدین کے ساتھ جناح ہسپتال چیک اپ کے لیے آئی تھی۔ ملزم غلام عباس کی جناح ہسپتال کے انٹری گیٹ سے بچی کو اغوا کر کے فرار ہونے کی کوشش۔ اخلاق اللہ تارڑ نے بتایا کہ اغوا ہونے والی بچی کے والد نے بچی نہ ملنے پر شور کیا، جس پر گیٹ پر موجود پیٹرولنگ ٹیم نے رسپانس کرتے ہوئے جناح اشارہ سے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ بچی والد کے سپرد کر دی گئی۔ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن، آئی جی پنجاب، سی سی پی او لاہور، ڈی آئی جی آپریشن لاہور کی طرف سے ڈی ایس پی گارڈن ٹاؤن سرکل، ایس ایچ او تھانہ فیصل ٹاؤن اور چوکی انچارج کے علاوہ پیٹرولنگ کرنے والے جوانوں کو کوئک رسپانس پر شاباش دی گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں لاہور سے، جہاں بچوں کے اغوا کو روکنے کے لیے لاہور پولیس متحرک ہے۔ آئے روز بچوں کے اغوا کے واقعات کے پیش نظر والدین میں خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ چند روز قبل نشتر کالونی کے علاقے سے نومولود بچے کا اغوا ہوا تھا، جسے بازیاب کروا کر والدین کے حوالے کیا گیا، اور ایس پی ماڈل ٹاؤن اخلاق اللہ تارڑ والدین سے ملنے کے لیے ان کے گھر بھی گئے تھے۔ اسی طرح جناح اسپتال سے 2.5 سالہ بچی اغوا کرنے کی کوشش پر اغوا کار کو گرفتار کر لیا گیا۔ گارڈن ٹاؤن پیٹرولنگ نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے 2.5 سالہ بچی بحفاظت بازیاب کرا لی۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن کے مطابق 2.5 سالہ انشا والدین کے ساتھ جناح ہسپتال چیک اپ کے لیے آئی تھی۔ ملزم غلام عباس کی جناح ہسپتال کے انٹری گیٹ سے بچی کو اغوا کر کے فرار ہونے کی کوشش۔ اخلاق اللہ تارڑ نے بتایا کہ اغوا ہونے والی بچی کے والد نے بچی نہ ملنے پر شور کیا، جس پر گیٹ پر موجود پیٹرولنگ ٹیم نے رسپانس کرتے ہوئے جناح اشارہ سے ملزم گرفتار کر لیا۔ بچی والد کے سپرد کر دی گئی، جبکہ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش جاری ہے۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن، آئی جی پنجاب، سی سی پی او لاہور، ڈی آئی جی آپریشن لاہور کی طرف سے ڈی ایس پی گارڈن ٹاؤن سرکل، ایس ایچ او تھانہ فیصل ٹاؤن اور چوکی انچارج کے علاوہ پیٹرولنگ کرنے والے جوانوں کو کوئک رسپانس پر شاباش دی گئی ہے۔ اپڈیٹ کرتے چلیں آپ کو لاہور سے، جہاں بچوں کے اغوا کی روکنے کے لیے لاہور پولیس متحرک ہے۔ آئے روز بچوں کے اغوا کے واقعات کے پیش نظر والدین میں خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ چند روز قبل نشتر کالونی کے علاقے سے نومولود بچے کا اغوا ہوا تھا، جسے بازیاب کروا کر والدین کے حوالے کیا گیا، اور ایس پی ماڈل ٹاؤن اخلاق اللہ تارڑ والدین سے ملنے کے لیے ان کے گھر بھی گئے تھے۔ اسی طرح جناح اسپتال سے 2.5 سالہ بچی اغوا کرنے کی کوشش پر اغوا کار کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ گارڈن ٹاؤن پیٹرولنگ نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے 2.5 سالہ بچی بحفاظت بازیاب کرا لی۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن کے مطابق 2.5 سالہ انشا والدین کے ساتھ جناح ہسپتال چیک اپ کے لیے آئی تھی۔ ملزم غلام عباس کی جناح ہسپتال کے انٹری گیٹ سے بچی کو اغوا کر کے فرار ہونے کی کوشش۔ اخلاق اللہ تارڑ نے بتایا کہ اغوا ہونے والی بچی کے والد نے بچی نہ ملنے پر شور کیا، جس پر گیٹ پر موجود پیٹرولنگ ٹیم نے رسپانس کرتے ہوئے جناح اشارہ سے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ بچی والد کے سپرد کر دی گئی، جبکہ ملزم کے خلاف مقدمہ درج اور مزید تفتیش جاری ہے۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن، آئی جی پنجاب، سی سی پی او لاہور، ڈی آئی جی آپریشن لاہور کی طرف سے ڈی ایس پی گارڈن ٹاؤن سرکل، ایس ایچ او تھانہ فیصل ٹاؤن اور چوکی انچارج کے علاوہ پیٹرولنگ کرنے والے جوانوں کو کوئک رسپانس پر شاباش دی گئی ہے۔ اور اب کچھ بات کرتے ہیں کاروبار کی۔ جی ہاں، کاروباری ہفتے کے تیسرے روز کاروبار کے آغاز پر پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان دیکھنے کو مل رہا ہے۔ آج پھر پاکستان سٹاک ایکسچینج میں 80,000 کی حد عبور ہو گئی۔ آج کاروبار کے آغاز پر پاکستان سٹاک مارکیٹ کے 100 انڈیکس میں 542 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد 100 انڈیکس 80,094 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز کاروباری ہفتے کے دوسرے روز ٹریڈنگ کے دوران سٹاک ایکسچینج میں 728 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا تھا، جس کے بعد 100 انڈیکس 89,582 پوائنٹس پر بند ہوا تھا۔ دوسری جانب آج کاروبار کے آغاز پر ہی انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 13 پیسے کا اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد انٹر بینک نے امریکی کرنسی
278 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड कर रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत दो तरफा ताल्लुकात की मजबूती का बायस बनेंगे। हम ताजिकिस्तान के साथ अपने बरादराना ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाएंगे। ताजिकिस्तान के सदर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, ऐसा लगता है हम एक घर से दूसरे घर आए हैं। ताजिकिस्तान में हर तरफ हमारा गर्म जोशी से इस्तकबाल किया गया। वजीर आजम पाकिस्तान ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान समझौतों पर दस्तखत से ताउन की नई राहें खुलेंगी। ज़राअत, सेहत, तालीम, सरमायाकारी और तजारत के फरोग के लिए काम करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी तजारती हजम हमारे करीबी ताल्लुकात का आईनादार नहीं है। तजारती हजम में इजाफे के लिए हमें सालाना बुनियादों पर अहदाफ का तयन करना होगा। कराची बंदरगाह से बरास्ता अफगानिस्तान ताजिकिस्तान के लिए अशिया की नकलो हमल हो रही है। वजीर आजम ने कहा कि चाहते हैं पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान रेल और रोड नेटवर्क पर बूथ हो। ताजिकिस्तान के सदर के साथ वन ऑन वन और वफूद की सतह पर तामीरी और मुफीद बातचीत हुई। शंघाई ताउन तंजीम का 2 रोजा सरबराही इजलास आज से काजाकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना में शुरू होगा। इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी वजीर आजम शहबाज शरीफ करेंगे। वजीर आजम तंजीम के इजलास से खिताब भी करेंगे। शहबाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में अहम इलाकाई और आलमी मसाइल पर पाकिस्तान के नुक्ता नजर से आगाह करेंगे, जबकि वजीर आजम रूसी और चीनी सदर से अलग अलग अहम मुलाकातें भी करेंगे। और अब आपको बताएं कि डाकुओं ने कच्चे के इलाके में कायम पुलिस चेक पोस्ट ददड़ पर हमला कर दिया। डाकुओं की फायरिंग से 2 एहलकार शहीद जबकि एक डाकू मारा गया। तफसीलात के मुताबिक 20 से ज्यादा डाकुओं ने पुलिस चेक पोस्ट पर हमला किया। डाकुओं की फायरिंग से 2 एहलकार मौका पर शहीद जबकि 2 जख्मी हुए। डाकू फायरिंग करते हुए कच्चे की तरफ फरार हो गए। एसएसपी बशीर बरोही का कहना है कि पुलिस की फायरिंग से एक डाकू भी हलाक हुआ जबकि 3 डाकू जख्मी भी हुए हैं। मारा जाने वाला डाकू नजीर भैयो डाकू खादो भैयो का भाई है। हलाक होने वाला डाकू 6 दिन कबल अगवा होने वाले 3 ताजरों के अगवा में मुलविस था। इतला मिलने पर पुलिस की भारी नफरी जाए वकुआ पर पहुंच गई और शहीद एहलकारों की मैयतें और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक शहीद एहलकारों में अल्लाह डनो सब्जोई, निसार अहमद कलहोडू जबकि जख्मी एहलकारों में जाहिद नसीरानी और अनवर चन्ना शामिल हैं। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि सेहत की तमाम सहूलियात अवाम की दहलीज तक पहुंचाना मेरा ख्वाब है। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत शोबा सेहत में इस्लाहात से मुतालिक खुसूसी इजलास हुआ जिसमें अहम फैसले किए गए। इजलास के दौरान मरीम नवाज ने मराकज सेहत की तामीर और मुरम्मत मार्च तक मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया, जबकि मराकज सेहत, तहसील और डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में बायोमेट्रिक हाजिरी लाजमी करने पर इतफाक हुआ। इजलास में फैसला किया गया कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पतालों में थैलेसीमिया सेंटर कायम होंगे। डिस्ट्रिक्ट थैलेसीमिया सेंटर्स को रीजनल ब्लड सेंटर्स के साथ मुंसलिक किया जाएगा। वजीर आला पंजाब ने डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में व्हील वुमेन क्लिनिक कायम करने की भी हिदायत कर दी। हर डिवीजन में मेमोग्राफी मशीन, क्लिनिक ऑन व्हील हर जिला में बारी बारी सर्विसेज मुहैया करेगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अस्पतालों में गार्ड्स की तरफ से पैसों की वसूली की शिकायत का भी सख्त नोटिस लिया और बरहमी का इजहार किया। वजीर आला ने सूबा भर के अस्पतालों में सिक्योरिटी का पब्लिक फ्रेंडली सिस्टम लाने के लिए प्लान तलब कर लिया। मरियम नवाज ने अस्पतालों में लेप्रोस्कोपी और इंडोस्कोपी सर्विसेज जल्द अज जल्द फाल करने की हिदायत भी की। इजलास में राजनपुर में स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाने का भी फैसला किया गया। वजीर आला पंजाब ने राजनपुर के नए डीएचक्यू अस्पताल का प्लान फौरी तलब कर लिया। इजलास में फैसला किया गया कि शेखुपुरा और बहावल नगर में आउटसोर्सिंग के जरिए जदीद तरीन टेस्ला एमआरआई मशीन मुहैया की जाएंगी। तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों में वेंटिलेटर और ट्रेंड स्टाफ फराहम करने की तजवीज पर भी इतफाक किया गया। दौरान इजलास अस्पतालों में सफाई का निजाम मैकेनाइज करने का भी फैसला, मैकेनिकल स्वीपर मुहैया किए जाएंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने हुक्म दिया कि मराकज सेहत में अद्वियात की 100% मुफ्त फराहमी यकीनी बनाई जाए और मेडिसिन सप्लाई चेन में बेहतरी लाई जाए। इजलास में मुंतखब आरएचसीज को फाल अस्पताल बनाने, साल में 2 मरतबा शोबा सेहत में थर्ड पार्टी ऑडिट और मराकज सेहत के हेल्थ स्टाफ की पब्लिक हेल्थ टेक्नीशियन ट्रेनिंग कराने का भी फैसला किया गया। लेडी हेल्थ विजिटर्स और दीगर स्टाफ को ईसीजी ट्रेनिंग भी कराई जाएगी।
दौरान इजलास बताया गया कि पंजाब के 200 बुनियादी मराकज सेहत में मार्च तक 24 घंटे सर्विसेज मुहैया होंगी। 717 हेल्थ न्यूट्रिशन सुपरवाइजर्स को न्यूट्रिशन ट्रेनिंग कराई जाएगी। दूर दराज अस्पतालों में एनेस्थीसिया पैड्स और कार्डियोलॉजिस्ट हफ्ते में एक बार दौरा करेंगे, जबकि सीटी स्कैन और पैथोलॉजी सर्विसेज आउटसोर्स की जाएंगी। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि सेहत की हर सहूलत आवाम की दहलीज तक पहुंचाना मेरा ख्वाब है। मराकज सेहत को अपग्रेड करने से बड़े अस्पतालों में मरीजों का रश कम होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ तक सर्विसेज में बेहतरी मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में स्पेशलाइज्ड ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है। हेल्थ सर्विसेज को घर तक पहुंचाने का मॉडल अपनाया जाए। सरकारी अस्पतालों में सर्जरी को लेप्रोस्कोपी पर लाना चाहिए। गुज़श्ता 4 साल सेहत समेत हर शोबे में गुड गवर्नेंस का बहरान रहा। IMF ने एक बार फिर बिजली के निर्खों में कम से कम ₹5 इजाफे का मुतालबा कर दिया है। जराये के मुताबिक 10 जुलाई से पहले बिजली ₹5 फी यूनिट महंगी की जा सकती है। वर्चुअल बातचीत के दौरान IMF को मुश्किल फैसले से आगाह किया गया। IMF को गैस कीमतों में इजाफे के इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। वजारत खजाना के जराये का कहना है कि IMF मईशत की बेहतरी के लिए ताहाल इकदाम पर मुतमईन है। नए कर्ज प्रोग्राम पर अहम पेशरफ नवंबर माह के इख्तिताम तक मुतवक्के है, जबकि जराये बिजली के निर्खों में इजाफे से पेश की इकदाम पर अमल दरामद मुकम्मल हो जाएगा। जराये ने मजीद बताया है कि नए कर्ज प्रोग्राम पर स्टाफ लेवल मुज़ाकरात मई में भी हुए हैं। मई से अब तक पाकिस्तान ने बेशतर पेश की अहदाफ हासिल कर लिए हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से न्यूयॉर्क स्टेट के डेप्यूटी स्पीकर फिलिप रामूस ने मुलाकात की। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से अमेरिकन पाकिस्तानी पब्लिक अफेयर्स कमेटी के वफद ने भी मुलाकात की। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी थे। बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात करने वालों में अमेरिकन पाकिस्तानी पब्लिक अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर एजाज अहमद शामिल थे। अमेरिकन पाकिस्तानी पब्लिक अफेयर्स कमेटी के सदर इम्तियाज राही, डायरेक्टर डॉक्टर परवेज इकबाल और न्यूयॉर्क चैप्टर के सदर तारिक खान भी मुलाकात में शामिल थे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का न्यूयॉर्क स्टेट के डेप्यूटी स्पीकर फिलिप रामूस से बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को अमेरिकन पाकिस्तानी पब्लिक अफेयर्स कमेटी के वफद ने पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल से आगाह किया। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा और रुकने कौमी असम्बली ओन चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क में सिर्फ इंतशार फैलाना चाहती है। अपने एक बयान में IPP रहनुमा ओन चौधरी ने PTI क़यादत को मुखातिब करते हुए कहा, मीडिया मुहिम में पाकिस्तान के खिलाफ आपने क्या कुछ नहीं किया। बाहर बैठा शख्स जो ट्वीट कर रहा है, असल मुजरिम तो वो है। उनका कहना था कि आपको जो लोग पैसे दे रहे हैं उनकी मनी ट्रेल्स भी मौजूद हैं। आपका मकसद मुल्क में सिर्फ इंतशार फैलाना है। कभी वजीर आजम के दौरे चीन को फ्लॉप कहा जाता है। PTI में जो अकल रखते हैं वो सोचें। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा उन चौधरी ने मजीद कहा कि 2018 से आज तक मालूम है कि PTI में करप्शन का राज है। और अब आपको बताएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 एडिशनल सेशन जजेस को तरक्की दे दी है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महकमाना प्रमोशन कमेटी की सिफारिशात पर तरक्की की मंजूरी दी। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक एडिशनल सेशन जजेस को सेशन जज के ओहदे पर तरक्की दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक तरक्की पाने वालों में एडिशनल सेशन जज सिकंदर खान, मोहम्मद अदनान और डॉक्टर आबिदा सज्जाद शामिल हैं। तरक्की का इतलाक ओहदे संभालने की तारीख से होगा। नाज़रीन, सिंध काबीना में तोसी कर दी गई। हुकूमत सिंध ने 10 मुआवनीन खुसूसी मुकर्रर कर दिए। जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक मुआवनीन खुसूसी में लाल चंद अकरानी, सरफराज राजर, कासिम नवीद कमर शामिल हैं।
वकार मेहदी, राजवीर सिंह, मंसूर शाहानी भी बतौर मुआवनीन खुसूसी बनाए गए। उस्मान गनी, अब्दुल जब्बार खान, जुनैद बुलंद और मोहम्मद सलीम बलोच को भी शामिल कर लिया गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 6 रहनुमाओं का तर्जुमान सिंध हुकूमत मुकर्रर कर दिया। रुकन सिंध असम्बली मखदूम फखर जमान, सादिया जावेद, बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख, सरमद पलीजो, अब्दुल वाहिद हाली पोटो, मोहम्मद अली राशिद भी तर्जुमान सिंध हुकूमत मुकर्रर कर दिए गए हैं। अमरीका की यौम आज़ादी पर पाकिस्तान के साथ मुसलसल शराकत दारी का जश्न मनाने के लिए अमरीकी सफारत खाने में मेड इन यूएसए के उन्वान से रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के हवाले से जारी एलामिया के मुताबिक खुसूसी तकरीब में अमरीका और पाकिस्तान के माबैन पायदार शराकत दारी को उजागर किया गया। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शिरकत की। सरकारी हुक्काम, कारोबारी, तदरीसी, सिविल सोसाइटी और सफारतकार भी शरीक हुए। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामजन हैं। तवानाई, बुनियादी ढांचे के शोबों में पाकिस्तान में मुतादिद बड़े आबी ज़खायर अमरीकी ताउन से तामीर किए गए। पाकिस्तान में तालीम और सेहत के शोबे अमरीकी ताउन से मजबूत किए गए। उन्होंने कहा है कि बाज़ औक़ात दोनों ममालिक को सैलाब, जंग, वबा या मुआशी बहरान में बड़ी मुश्किलात का सामना रहा। हमारी शराकत दारी कौमी खुशहाली और सलामती में इजाफे का हिस्सा रही है। दोनों ममालिक ने मुश्तरका बहरानों से निमटने, रोशन मुस्तकबिल के मौके से मुस्तफीद होने के बाहमी इकदाम का अज़्म किया। खातून मोहतसिब पंजाब नबीला हाकिम अली खान की खातन और लड़कियों के लिए कानूनी इस्लाहात की कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत हुई। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मोटरवे पुलिस ने 1,40,000 रुपए मालिक के 2 मोबाइल फोन तलाश करके मालिक के हवाले कर दिए। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक सवात मोटरवे पालिया के करीब एक शख्स ने मोटरवे पुलिस को बताया कि कुछ देर पहले वो पेट्रोल पंप पर रुका था जहां वो अपने मोबाइल भूल आया है। वाकया इल्म में आते ही मोटरवे पुलिस की मुतालिका पुलिस मोबाइल ने मौका पर पहुंचकर मोबाइल फोन तलाश कर लिए। मोबाइल मिलने पर उस शख्स ने मोटरवे पुलिस की काविश को सराहते हुए शुक्रिया अदा किया। दरिया चनाब में मौजा उस्मान के मकाम पर 18 साल नौजवान नहाते हुए डूब गया। रेस्क्यू टीमों ने सर्च ऑपरेशन के बाद लाश बुरसा के हवाले कर दी। दरिया चनाब में मौजा हाजी उस्मान के मकाम पर 18 साल नौजवान को नहाते हुए दरिया चनाब की खूनी लहरों ने निगल लिया। डूबने वाले लड़के की लाश सर्च ऑपरेशन करके निकाल ली गई। 18 साल अमीर खान नहाते हुए गहरे पानी में जाने की वजह से डूब गया था। और वजीर अला पंजाब मरीम नवाज ने जिला अटक की मवेशी मंडी को दूसरे मकाम पर मुंतकिल करने पर नोटिस ले लिया है। जिला अटक के मुस्लिम लीग नून के MNA शेख आफ्ताब के साथ बात करते हुए कहा कि गोंदल मवेशी मंडी को अपनी मकामी जगह पर फौरी बहाल किया जाए और आप इसकी बहाली का ऑर्डर जारी करें। जिस पर MNA शेख आफ्ताब ने डिप्टी कमिश्नर अटक से मीटिंग के दौरान गोंदल मवेशी मंडी को अपनी जगह मकामी जगह पर बहाली का ऑर्डर जारी किया। आपको अपडेट करते चलें, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का जिला अटक की मवेशी मंडी को दूसरे मकाम पर मुंतकिल। जी बिल्कुल, गोंदल मवेशी मंडी को इंतजामिया की जानिब से दूसरे मकाम पर मुंतकली के खदमात जारी होने के बाद गोंदल मवेशी मंडी को ताले लगाकर बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से व्यापारी हजरात को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा और व्यापारियों ने इंतजामिया के इस इकदाम को मुस्तरद करते हुए शदीद एहतजाज भी किया। अटक के तमाम सियासी लीडरों ने इस इकदाम पर यकजा होकर और एक आवाज़ बनकर मवेशी मंडी को अपनी मकामी जगह पर बहाल करने में अहम रोल अदा किया है।
गुज़िश्ता रोज़ मुस्लिम लीग नून के MNA जनाब शेख आफ्ताब साहब ने डिप्टी कमिश्नर ऑटोक्राव आतिफ रजा साहब से मीटिंग की और गोंदल मवेशी मंडी को रवायती जगह पर ही बहाली के अहकाम दिए। मेरे साथ गोंदल मवेशी मंडी के ठेकेदार आजम लाला और मुस्लिम लीग नून के वाइस चेयरमैन अजीर मुतलाई मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है गोंदल मवेशी मंडी को रवायती जगह और बहाली में। रहमान रहीम, मैं इस्माइल भाई तेरा बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ जरा तू साढ़े को आया। पिछले जड़ा दा एहतजाज होया है जिस मेरे नाल शरीक होया है यासर ज़मान खान फरमूली साबिक चेयरमैन मुस्लिम लीग नून, नसीम खान मलम मसूर साबिक चेयरमैन मुस्लिम लीग नून, काजी नाज़म आफ गोंदल और बहुत कशीद तादाद व्यापारी भी मौजूद है। मैं भी मौजूद हाँ, गोंदल ने लोग भी मौजूद है। साडा एक मुतालबा है कि असी गोंदल लानी है, गोल्डे असा नहीं बहना, असा लानी तो गोंदल ने मकाम ते लानी है चाहे कुछ भी हो जे। मैं अपील की है जिस अटक ज़िला अटक ने जेड़े सियासी चाहे इकतदार हो या अपोजिशन में यकसा हो के साडा व्यापारियों ने और ठेकेदारां साथ दिता ने, असी उन्होंने बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ। असा ये नहीं वेखने च साड़ी आपे सियासत मुखालफत या कुछ भी है, उन्हें यकसा तो एक ही आवाज़ से लब बहक आ गई है। असी उन्होंने बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ। शेख आफ्ताब ने भी शुक्रगुजार हाँ। उस मरीम साहब नाल ते शहबाज शरीफ नाल गल की है कि साढ़े हल्के की आवाम बहुत परेशान है, जो गरीब लोगों का रिजक लग्या है वो परेशान हो। मरीम नवाज साहबा फौरी आका हुक्म दिता शेख साहबा जो तू खुद ही बाली ने आर्डर जारी कर दे। शेख साहब कल मीटिंग ने DCO साहब ने जेड़े उसने मैंबर है अपने मुस्लिम लीग नून कमेटी ने उन्हें यकसा हो के बहाली ने आर्डर चाह दिता है। असी उन्होंने बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ। नहायत व्यापारी भी शुक्रगुजार हों यासर ज़मान की तरफों और नसीम खान की तरफों चेयरमैन और काजी नाज़म की तरफों जी साड़ी टीम आई, असी उन्होंने तरफों बहुत बहुत नाज़म की तरफों भी मैं करना, यासर ज़मान की तरफों भी मैं और नसीम खान की तरफ बहुत शुक्रगुजारी करना चाहिए। साडा यकसा हो के पूरे ज़िला अटक सियासियाँ साडा साथ देता, असी उन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया अदा करने। हूँ इस व्यापारी की रिक्वेस्ट है कि पुरअमन हो के अपना रोज़गार करो, किसी नाल झगड़ा लड़ाई फसाद ठेकेदारा नाल भी ना करो, अपनी माहौल अपना जो टैक्स बनना ने वो पुरअमन तरीके से देवन। शुक्रिया बहुत। साथ मुस्लिम लीग नून के वाइस चेयरमैन अजीर मुतलाई साहब मौजूद है। इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है मंडी दोबारा अपनी जगह पे बहाल होने की वजह से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं पूरी छज इलाका छजनी जी क़यादत है शेख आफ्ताब साहब और तमाम जेड़े इकतदार या के मतलब अपोजिशन सारे ने मशकूर हैं कि मतलब लोगों ने एक देरीना मुतालबा है। हाईकोर्ट के अहकामात हवा में उड़ा दी गए। चुनिया उताड़ का हसनैन नामी पटवारी खुद दफ्तर से गायब। सरकारी रिकॉर्ड तीन प्राइवेट मुंशियों के हवाले कर दिया गया। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों के गैर कानूनी इंतकालात और सरकारी जमीनों पर नाजायज कब्जों का इंकिशाफ हुआ है। शहरियों का DG एंटी करप्शन वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से नोटिस लेकर प्राइवेट मुंशियों और पटवारियों के खिलाफ नोटिस लेकर कार्रवाई करने का मुतालिबा किया गया है। आपको अपडेट करते चलें, लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए हैं। चुनिया उताड़ का हसनैन नामी पटवारी खुद दफ्तर से गायब है और सरकारी रिकॉर्ड तीन प्राइवेट मुंशियों के हवाले कर दिया गया है। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों के गैर कानूनी इंतकालात और सरकारी जमीनों पर नाजायज कब्जों का भी इंकिशाफ हुआ है। तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने नुमाइंदे राना इरफान हैदर से। जी इरफान, आगाह कीजिएगा। जी, कानून तो सबके लिए बराबर है और सब पर लागू होता है, लेकिन लगता यूं है कि हल्का पटवार चुनिया उताड़ मैनुअल के हुसनैन नामी पटवारी पर कोई कानून लागू नहीं होता। हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद एक नहीं, दो नहीं, तीन मुंशी तैनात कर रखे हैं। इन मुंशियों के तमाम इखराजात पूरे करने के लिए न सिर्फ साइलिन की जेबों पर डाके डाले जाते हैं, बल्कि सरकारी रकबाजात औने पौने दामों फरोख्त करके सरकारी खजाने को नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है। हल्का पटवार चुनिया उताड़ में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों और उनके गैर कानूनी इंतकालात के जरिए भी हल्का पटवार चुनिया उताड़ मैनुअल का पटवारी हुसनैन और उसके मुंशियों ने खूब लूट मचा रखी है। इसके साथ पटवारी का सरकारी रिकॉर्ड
तीन प्राइवेट मुंशियों के हवाले करना ना सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी है बल्कि यहाँ कानून को एक मजाक बना दिया गया है। और इसी तनाजुर में हम देखें तो ये प्राइवेट मुंशी नहीं है बल्कि पटवारियों की जानिब से जाती तौर पर तैनात किए गए साइलिन का खून चूसने वाले कीड़े हैं जो सरकारी फीसों के अलावा शहरियों को जाती अखराजात पूरे करने के लिए लूटते हैं। शहरियों ने चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर लैंड एंड रेवेन्यू कसूर, डिप्टी कमिश्नर कसूर, डीजी एंटी करप्शन, कमिश्नर लाहौर, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और वजीर आला पंजाब से नोटिस लेकर कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। जी बहुत शुक्रिया राना इरफान हैदर, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। जिले इंतजामिया के ज़ेरे एहतमाम इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के मौजू पर निजी माकी में खुसूसी सेमिनार का इनकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विर्क और डीपीओ गुजरात मुस्तनसर अतातारट बाजवा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। जिला भर से तमाम मकातब फिक्र के उलमा कराम, इंतजामी और पुलिस अफसरान इस मौके पर मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज डिस्ट्रिक्ट गुजरात में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के हवाले से एक बहुत बड़ा ये इजलास मुनक़द किया है जिसमें तमाम फ़िक़्ह इस्लाम से उलमा कराम ने शिरकत की है, जिसमें हमारे अंजुमन ताजरान के तमाम जो सदूर हैं उन्होंने शिरकत की है, जिसमें हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। शहर के और डिस्ट्रिक्ट के जो बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनको भी हमने इनवाइट किया हुआ था। बेसिकली तमाम लोगों की तरफ से जो हमारे दरमियान इत्तेहाद और इत्तफाक और आने वाले दिनों में जैसे हमें एक मुतफिक और मुतहिद होकर आगे चलने की ज़रूरत है उस पर यहाँ पे बातें की गई और तमाम उलमा कराम ने जिस तरह खूबसूरत अंदाज में बातें की। मकसद सिर्फ यही था कि इस इजलास का तो पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोग जो हैं हर मकातब फ़िक्र से उनको इकट्ठा करके एक दफ़ा बात की जाए। तो आज यहाँ पे जो मुकालमा हुआ है उसमें माशाल्लाह से अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि तमाम लोगों का देखने का ज़ाविया, बात करने का ज़ाविया, आने वाले दिनों में अपने साथ एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे की हेल्प करके और वक्त को एक अच्छे अंदाज से गुजारने का ज़ाविया जो है वो सेम है। तो मैं बड़ा पुरुमीद हूँ और इस यकीन के साथ कि अल्लाह ताला खैर वफ़ीयत रखे तो आने वाले दिन डिस्ट्रिक्ट गुजरात के लिए बड़े पुरअमन होंगे और हम सब मिलकर आने वाले दिनों में एक दूसरे की हेल्प के साथ अमन से अपना मुहर्रम अल हराम गुजार सकेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि डिचकोट थाना इंतजामिया की तरफ से टाउटों के नामों के साथ तहरीरी फ्लैक्स थाना के बाहर आवेजा कर दी, जिस पर मरकजी बैनुल मजहब अमन कमेटी के तहसील चेयरमैन राना नसीर का नाम भी टाउटों की लिस्ट में लिखकर थाना के बाहर लगा दिया गया, जिस पर टाउटों के साथ शरीफ शहरी भी पुलिस की जद में आ गए हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं कोहिनूर न्यूज के रिपोर्टर खालिद ढोगर से। जी खालिद, बताइएगा। यहाँ पर 5 से 6 लोगों का दाखिला मजबूर है और इनको चौक किया गया है। जानते हैं कि आप मेंबर है, आपका नाम तो डाला गया है। जी आप जी मैं खालिद साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये हमारी आवाज़ बने। मैं भी कुछ मसरूफ़ का इस तरह है कि ये जो टोक की फ्लैक्स मैंने भी देखी है, तो मैं अमन कमेटी 30 का काम करता हूँ। थाना जो बना है ये गरीब आवाम के लिए, अच्छे और बुरे दोनों के लिए बने। हम भी थाने में जाते हैं, हमारा काम सिर्फ है कि बंदा उसका पीस के हवाले से, अमन के हवाले से काम करना है। सपोर्ट के इदारे भी हमारे हैं, पुलिस भी हमारी है। पुलिस को गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से, गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से जो इन्होंने हमारे ऊपर दबा लगाया है, मैं उसकी पर समझ करता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी शोहरत को नुकसान पहुँचाया है। ऐसे जो अनासर हैं, जो पसंद अनासर हैं, मैं हर फोरम इस्तेमाल करूँगा और मैं आला अफसरान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने थाने में लगी फ्लैक्स उतारने का हुक्म दिया है। अल्लाह पाक उनकी खैर अचानक जो फ्लैश लगाई गई है, तो मैं मिलता जरूरत जाती मैं कमेटी के हमारे रिपोर्ट में जाता हूँ, वाला अफसरान मिलता हूँ और लोगों के लड़ाई झगड़े के लिए
अमीर जमात इस्लामी हाफिज रहमान रहमान का कहना है कि इस्लामाबाद दाखिले से रोका गया तो हमारे पास प्लान बी और सी भी मौजूद है। किसी सियासी जमात के साथ नहीं, अवाम से इत्तेहाद कर लिया है और उन्हीं के साथ मिलकर धरना देंगे। इस्लामाबाद जलाओ घेराव या गोली के लिए नहीं, अपना हक लेने जा रहे हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं आसिम बदर अपनी इस रिपोर्ट में। मंसूरा लाहौर में मीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की वजीर आजम को धमकी। कहते हैं शहबाज शरीफ साहब कौम को रिलीफ दें, इससे पहले कि कौम बिफर जाए और जाने का रास्ता भी ना मिले। इनका कहना था कि धरने पर बैठेंगे, उठने की सिर्फ एक शर्त होगी कि अवाम को रिलीफ दें। हम आग लगाने या गोली चलाने के लिए इस्लामाबाद नहीं जा रहे, बल्कि अवाम को रिलीफ देने। हम पुरअमन तरीके से जाएंगे, नताइज को हालांकि करेंगे। रिलीफ देना होगा, जाती मकसद कोई नहीं है, हमारा किसी पार्टी से नहीं बल्कि अवाम से इत्तेहाद हो गया है। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान चाहते हैं कि नए इलेक्शन पर नई डील हो और वो अरबों से इलेक्शन पर लगाना चाहते हैं। जब फार्म 45 है तो क्यों इलेक्शन करवाएं? जब फ्रॉड के नतीजे में रूबरू और खिराती सीटों को कैसे कबूल करे? इनका कहना था कि ये कहते हैं IMF राजी नहीं हुआ, अब तो और गैस बिजली की कीमतें बढ़ाएंगे। गैस व बिजली की कीमत तो बढ़ा दी, अब ये सिलसिला नहीं रुकेगा। आटे चीनी दाल पर भी टैक्स लगाकर वजीर आजम कहते महंगाई कम हो गई है। मौलाना कहते हैं नए इलेक्शन पर नई डील हो और अरबों से इलेक्शन चाहते हैं। जब फार्म 45 है तो क्यों इलेक्शन करवाएं? हम के हक के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा हम करेंगे। इमाम हुसैन ने जदोजहद के दफा 144 पहले भी लगी, ये रस्में नहीं है। हुकूमत पुराने खंडों के आदी हैं। जमात इस्लामी के पास प्लान बी सी बी, लेकिन वो धरने में बैठकर ऐलान करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि ये हमारा मुल्क है, फौज ब्यूरोक्रेसी अवाम से होते हैं, हमें एम्पायर की उंगली का इंतजार नहीं, सब अदारों को तावन करना होगा, वहाँ वो इस्लामाबाद से हो या रावलपिंडी से। कैमरामैन राना अवैस के हमरा आसिम बदर, कोहिनूर न्यूज, लाहौर। सीनियर एजुकेशन डेवलपमेंट माहिरीन शहनाज वजीर अली को भी मदऊ किया गया था। यूनिवर्सिटी के सदर अब्दुल कबीर काजी, प्रोफेसर स्टीफन एम लियोन, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के डीन डॉक्टर फरीद F पंजवानी, प्रोफेसर सलमा अहमद और आलम दीगर ने शिरकत की। तकरीब में मौजूद शुरका ने तालीम के हवाले से मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया और तकारीर पेश की। शुरका का कहना था कि आबो हवा और माहौलियाती तब्दीली तालीम के लिए तेजी से खतरा है। आज खातून मुहतसिब पंजाब नबीला हाकिम अली खान अपने दफ्तर में हरेसमेंट के मुकदमात की समाअत कर रही हैं ताकि खातून को इंसाफ फराहम किया जा सके। उनकी यह काविश खातून के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और मुआशरती इंसाफ के क़याम की जानिब एक अहम कदम है। खातून मुहतसिब पंजाब की ज़ेर क़यादत दफ्तर मुहतसिब खातून की शिकायत को संजीदगी से लेता है और उनके मसाइल का फौरी हल तलाश करने की कोशिश करता है। खबर से खबर तक का यह सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर फिल वक्त न्यूज स्टूडियो से इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज, क्योंकि हम हैं आजाद भी और जिम्मेदार भी।